Good afternoon, everyone. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है? चलिए, good. Yeah, nice to see you too. All right. So this is the third demo lecture in our GS History Foundation course. In the first lecture, I had given you a brief overview of the different requirements of the GS history syllabus from the point of view of the UPSC examination. I had given an overview of the lecture plan that we are going to follow. Then I had told you that we are going to begin with ancient history. Second lecture में हमने ancient history का पहला topic cover किया था. That is your Stone Ages, right? And in this chapter, we are going to cover the Harappan civilization, also known as the Indus Valley civilization, right? So I hope you are all ready with your notebooks. मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखूंगा, एक ओवरव्यू दूंगा, एंड देन आई once I explain all the relevant points, brief dictations I'll be giving so that you can write them down, and this will be helpful in your revision as well, right? So you can give the heading the Harappan civilization. तो यूपीएससी अगर क्वेश्चन बनाएगा तो कहां से बना सकता है? First of all, let us take a look at the important topics of this entire chapter. Number one, the discovery of the civilization. How the civilization was discovered, what were the initial excavations that were made, कहाँ पे इनकी initial sites located हैं, and who were the excavators and the archaeologists who unearthed the Harappan civilization. Second, now after the initial discovery, a lot of archaeological interest was engendered by the Harappan civilization, and a number of excavations took place. The scope of the Harappan civilization started expanding to make it one of the largest Bronze Age civilizations of the world, right? So we have to discuss the territorial boundaries or the geographical extent of this civilization. So the second topic is geographical extent. Thirdly, now since a number of sites were discovered, some of them turned out to be quite important. So all of these important sites and the important discoveries made over here, that also we should know, and the UPSC has previously asked several questions from this topic. So the third topic is important sites and discoveries. Now, town planning was an essential feature of the Harappan civilization. Whenever you think about the Harappan cities, you always think about planned cities, right? So all the essential elements of Harappan town planning, UPSC has already asked a means question and several previous years questions in the preliminary examination. So this topic also we have to discuss in detail. Harappan town planning. So what were the important so what were the important features of this Harappan town planning? Number 5. After this, we are going to try and find out what the material culture of the Harappan civilization was like. When I say material culture, I am talking about the economic elements of that civilization, right? So in material culture, we are going to talk about the agriculture, the importance of agriculture in the Harappan civilization, metallurgy. So the state of metal working and metallurgy during the Harappan civilization, the different arts and crafts production, and the extensive trade and commerce network of the Harappan civilization. ठीक है, तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ये चार चीजें इंपॉर्टेंट हैं. एंड लास्टली वी हैव टू टॉक अबाउट द रिलीजियस लाइफ और द बिलीफ सिस्टम ऑफ द हरप्पन्स.
सो यूपीएससी आपके प्री या मेंस में से क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा. ऑफ कोर्स देयर आर अदर टॉपिक्स सच एज द ओरिजिन एंड द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, लेकिन वो आपके ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है. जीएस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा. ठीक है, सो आई होप यू हैव टेकन दिस डाउन. लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द डिस्कवरी ऑफ द सिविलाइजेशन. अब सिलसिला शुरू होता है जब रेलवे कंस्ट्रक्शन इंडिया में पहली बार शुरू हुआ. ठीक है, who was the governor general who introduced the railways to India? That was Dalhousie, right? तो 1850s और 60s में रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम इंडिया में शुरू हुआ. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में भी ये काम चला. अच्छा, इसके लिए बहुत सारे एरिया को क्लियर किया गया, कई सारे एक्सकवेशंस करे गए, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स बनाई गई कि यहाँ पे रेलवे को ले डाउन करना फीजिबल है या अनफीजिबल है. फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, रेलवे ट्रैक्स वर बीइंग लेड डाउन, रेलवे स्टेशंस बनाने थे तो उसके लिए भी फाउंडेशंस को डिग अप करना था. ड्यूरिंग दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ इनिशिएटिंग द बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ रेलवेज, कुछ हमको फॉसिल रिमेन्स मिले या फिर कुछ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स मिले, सच एज कहीं पे कुछ ग्रेव्स मिली, कहीं पे कुछ पॉट्स मिले, कहीं पे कुछ ऑर्नामेंट्स मिले, कहीं पे कुछ टूल्स मिले. सो दिस गेव एन इंडिकेशन दैट जहां पे ये रेलवे का काम चल रहा था वहां पे कुछ हिस्टोरिकल साइट्स भी हो सकती हैं. बट इनिशियली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं इस डिस्कवरी ने जगाया अमंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स. उनको ज्यादा मतलब था रेलवे लाइन को ले डाउन करने से. सो एट सेवरल प्लेसेस हुआ क्या कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो साइट्स थी वहां पे जो बने बनाए ब्रिक्स थे, जो ईंटें थी, उनको रेलवे स्टेशन बनाने में यूज कर लिया गया. फिर उसके बाद 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया गया. एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया under its first director general Alexander Cunningham took an active interest in the historical discoveries made in this region. लेकिन इनके पास पैसा नहीं था तो एक्सकवेशंस बहुत ज्यादा हो नहीं पाए और जो प्रिलिमिनरी एक्सकवेशंस हुए उनसे बहुत ज्यादा चीजों के बारे में पता नहीं लगा. देन दोबारा से इसमें इंटरेस्ट जगा ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. तो फर्स्ट 2 decades ऑफ द 19th सेंचुरी में कई एक्सकवेशंस प्लान किए गए, लेकिन फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया तो ऑल दोज एक्सकवेशंस वर पोस्टपोन्ड. फाइनली 1920s में यहाँ पे एक्सकवेशंस किए गए. फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड और फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड वाज हड़प्पा. किसने एक्सकवेट किया इसको? जॉन मार्शल एंड दयाराम साहनी ने इस साइट को एक्सकवेट किया इन 1921. कहाँ पे है ये? इट इज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे पंजाब ऑफ पाकिस्तान. एक डिस्ट्रिक्ट है नोन एज द मॉन्टगोमरी डिस्ट्रिक्ट, वहां पे ये साइट लोकेटेड है. और अगले साल 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने एक्सकवेट किया मोहनजोदारो के साइट को. दिस इज लोकेटेड इन द लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध. सो दीज वर द फर्स्ट 2 साइट्स टू बी एक्सकवेटेड. और यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई विच गेव एविडेंस ऑफ अ वेरी लार्ज एंड वेल डेवलप्ड सिविलाइजेशन प्रीडेटिंग द वैदिक कल्चर. तो वैदिक कल्चर से भी पुरानी यहाँ पे एक सिविलाइजेशन के हमको एविडेंस मिले. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड. अब इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोला गया? क्योंकि मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों ही इंडस या फिर उसकी ट्रिब्यूटरीज के बैंक्स पर लोकेटेड थे. तो आर्कियोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया दैट द एंटायर सिविलाइजेशन वुड हैव बीन बेस्ड अराउंड दीज सिस्टम्स और दीज रिवर्स, द इंडस एंड उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरीज हैं उसके ऊपर बेस्ड रहे होंगे. लेकिन फिर उसके बाद नए साइट्स डिस्कवर किए गए जो कि इंडस सिविलाइजेशन और इंडस वैली और उसकी ट्रिब्यूटरीज के बाहर लोकेटेड थे. तो इसको बोल दिया गया फिर इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, क्योंकि एक रिवर थी सरस्वती जो आज आप गुजरात और राजस्थान के थ्रू एक ड्राइड अप रिवर बोल सकते हैं, घग्गर रिवर, उससे आइडेंटिफाई करी जाती थी. कई साइट्स इस ड्राइड रिवर के बेड के अराउंड भी लोकेटेड थे. तो इंडस और सरस्वती के अराउंड ये सिविलाइजेशन बसी हुई थी, तो इसको नाम दिया गया इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन. अच्छा, आर्कियोलॉजी में एक और कन्वेंशन होता है कि जहां पे भी सबसे पहला आपको साइट डिस्कवर किया गया है उसी साइट के नाम पे सिविलाइजेशन का नाम भी डाला जाएगा. सबसे पहली साइट कौन सी एक्सकवेट करी गई? हड़प्पा. सो
civilization was also named the Harappan civilization. So this is all that you need to know about the discovery of the civilization. Now take down a few points very quickly. Point number 1. During the construction of the Indian railways in the 1850s and 60s, some archaeological artifacts such as bricks, tools, pottery, and ornaments were found. However, these discoveries were largely ignored. Initially. Next point, in the 1870s, under the newly formed Archaeological Survey of India, ASI, Sir Alexander Cunningham undertook some preliminary excavations. Full stop. However, they were inconclusive. Next point. The opening decade of the 20th century witnessed renewed interest in these discoveries, and further excavations were planned. However, they had to be postponed due to the outbreak of World War I. World War I कब शुरू हुआ? 1914. खत्म कब हुआ? 1918 में. Right. Next point लिखो. In 1921, Sir John Marshall and Sir Dayaram Sahani excavated the site of Harappa, located in the Montgomery district of Punjab, Pakistan. Presently, it is located in the Montgomery district of Punjab, Pakistan, on the banks of the river Ravi. Next point, in 1922, Rakhal Das Banerjee R.D. Banerjee excavated the site of Mohenjo-daro, located in the present-day Larkana district of Sindh, Pakistan, on the banks of the river Indus. Next point, the discovery of these sites proved the existence of a well-developed urban civilization of the Bronze Age. Full stop. Next point. Since these sites were located on the Indus and its tributaries, it was initially named the Indus Valley Civilization.
Next point. However, when further excavations revealed sites along the dried up Ghaggar Valley, identified with the historical Saraswati River, comma, it was also named as the Indus Saraswati civilization. It was also known as the Indus Saraswati civilization. Next point. In accordance with archaeological convention, the civilization was also named after the first site. The civilization was also named after the first site to be excavated, comma, Harappa. That is the Harappan civilization. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, चाहे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन हो, चाहे हरप्पन सिविलाइजेशन हो, नाम अलग अलग है, सिविलाइजेशन सेम है. ऑलराइट, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द फर्स्ट टॉपिक. सेकंड टॉपिक क्या है? जियोग्राफिकल एक्सटेंट. ठीक है, तो broadly speaking, can you tell me that in which part of the Indian subcontinent it was present? In the northwestern part of the Indian subcontinent. Present day, both India or Pakistan mein. To be more specific, you can write down in Pakistan, this civilization is present in the states of Punjab, Sindh, and Balochistan. पंजाब, सिंध एंड बलूचिस्तान. अब आपका होमवर्क क्या है? दैट यू हैव टू गो टेक आउट एन एटलस एंड आइडेंटिफाई कि पंजाब में पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान कहाँ कहाँ पे हैं. ठीक है. इन इंडिया it is spread over the states and UTs of Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, Rajasthan, UP, Gujarat, and Maharashtra. गुजरात एंड महाराष्ट्र. ठीक है, तो वेरी एक्सटेंसिव सिविलाइजेशन. टू गिव यू एन आइडिया कि कितना बड़ा सिविलाइजेशन था, एक पॉइंट और लिखिए. रफली स्पीकिंग, दिस सिविलाइजेशन वाज स्प्रेड अक्रॉस एन एरिया measuring approximately 13 lakh square kilometers. Right? So 13 lakh square kilometers के दायरे में ये civilization फैली हुई थी. All right. Now we have to talk about the northernmost, southernmost, westernmost, and easternmost sites of this civilization. तो चार कोने सिविलाइजेशन के आपको इनके नाम पता होने चाहिए. नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी थी? इट वाज मांडा. कहां पे ये लोकेटेड है? प्रेजेंट डे जम्मू में. सदर्न मोस्ट साइट वाज दाइमाबाद, located in present day Maharashtra. Easternmost site was Alamgirpur, located in present day Meerut in western UP. And the westernmost site was
सुतका गेंडोर कहाँ पे लोकेटेड है? ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर में, बलूचिस्तान में ये सुतका गेंडोर साइट लोकेटेड है, राइट ऑन दी कोस्ट। तो पाकिस्तान का जो सदर्न कोस्ट है उसको माकरान कोस्ट बोला जाता है। तो यू कैन राइट ईरान पाकिस्तान बॉर्डर on the माकन कोस्ट। ठीक है, तो एक लाइन और लिख लीजिए। अमंग इट्स कंटेम्पररी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस, among its contemporary Bronze Age civilizations, comma, the Harappan civilization was the largest by area. By area कितना था ये? Approximately 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स। अच्छा, और क्या पता चला है आपको कि इसके कुछ कंटेम्पररी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस भी थी। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन किसको बोला जाता है? ऐसी सिविलाइजेशंस जहां पर ब्रॉन्ज को लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है। तो व्हाट वर दी अदर कंटेम्पररी ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशंस जो कि उसी टाइम पे एग्जिस्ट करती थी जिस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रहा था? दैट शुड बी योर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दीज इंक्लूड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, the Persian civilization, the Egyptian civilization, and the Chinese civilization. तो जिस समय हड़प्पा फ्लरिश कर रहा था उस समय मेसोपोटामियन, पर्शियन, इजिप्शियन और चाइनीज सिविलाइजेशंस भी फ्लरिश कर रही थी। इन सारी सिविलाइजेशंस में ब्रॉन्ज को लार्ज स्केल पर यूज किया जाता था और ये सारी अर्बन सिविलाइजेशंस थी which were based on an agricultural surplus and they had extensive trading networks, but among all of them the Harappan civilization was the largest. ठीक है, I hope this much is also clear. अब यूपीएससी आपको कैसे ट्रिक करता है इसके लिए एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है, राइट? आपको ये फिगर आपने देख लिया, ठीक है, कि 4 कोने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बता दिए गए हैं। अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा व्हाट जियोमेट्रिकल फिगर रफली रिजेंबल्स द शेप ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो 4 कोने दिख रहे हैं तो इसका मतलब या तो रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा या फिर रोम्बस होना चाहिए, बट दैट वाज नॉट द केस। उसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए थे, इट वाज स्क्वायर शेप्ड, इट वाज रेक्टेंगुलर शेप्ड, इट वाज रोम्बॉइड शेप्ड और इट वाज ट्रायंगुलर शेप्ड। करेक्ट आंसर इज दैट इट वाज ट्रायंगुलर शेप्ड। अब उसके लिए आपको मैप का ज्ञान होना चाहिए। तो एक रफ फिगर बना रहा हूं जिसमें आपको इंडिया का मैप दिखाया जाएगा, राइट? एंड यहाँ पे हम साइड्स को प्लॉट करेंगे। वो कश्मीर थोड़ा बड़ा बन गया है बट अप्रोक्सीमेटली ठीक है। ये पाकिस्तान दिख रहा है, ये अपना इंडिया दिख रहा है, राइट? अब मांडा मैंने कहाँ पे आपको बताया? इट वाज लोकेटेड इन जम्मू, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ पे आपको बताया? इट वाज लोकेटेड इन प्रेजेंट डे मेरठ, समवेयर ओवर हियर। दायमाबाद कहाँ पे बताया? प्रेजेंट डे महाराष्ट्र। तो आप अगर एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो आपको रफली यहाँ पे उसका साइड दिखेगा। और सुतका गेंडोर कहाँ पे बताया? ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, राइट ऑन दी कोस्ट, तो यहाँ पर। अब अगर इन 4 साइड्स को हम स्ट्रेट लाइन से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो रंगा हमको फिगर मिलेगा। Are we getting a 4-edged figure or roughly a 3-edged figure? तो we are going to get roughly a 3-edged figure। तो ट्रायंगुलर शेप है सिविलाइजेशन का। अब यूपीएससी आपको इस तरह से ट्रिक करने की कोशिश करेगा। Not many people would have been able to answer this if they had not studied the map। तो मैप को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपकी एनसीईआरटीज में जो मैप्स दिए हुए हैं, स्पेशली और न्यू एनसीईआरटीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चंस फ्रेम कर दिए जाते हैं। All right, so I hope this much is also clear। तो जियोग्राफिकल एक्सटेंट हमने कवर कर लिया है, तो 2 टॉपिक अपने हो गए हैं।
third topic are the, sorry, important sites and discoveries. राइट, तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं और वहां पे क्या इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं, ये हमको पता होना चाहिए. ऑल राइट, सो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे फेमस साइट है, दैट इज मोहनजोदारो. इसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको ऑलरेडी पता है, सच एज 1921 में इसको पहली बार एक्सकवेट किया गया, सॉरी 1922 में इसको पहली बार एक्सकवेट किया गया. किसने एक्सकवेट किया? आर.डी. बैनर्जी ने एक्सकवेट किया. कहां पे लोकेटेड है ये? इन दी लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस. तो आपको हर साइड का ब्रॉड लोकेशन पता होना चाहिए, सो दैट अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है सो यू वोंट मिस दैट आउट. कई बार क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्थ टू साउथ आपको या फिर ईस्ट टू वेस्ट साइड्स को अरेंज करना होता है. फॉर एग्जाम्पल, कल हरियाणा सिविल सर्विसेज का एग्जाम हुआ, वहां पे आपको 4 साइड्स दी हुई थी एंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आपको इनको अरेंज करना था. तो अगर आपने मैप ठीक से नहीं पढ़ा है तो यू विल नॉट बी एबल टू डू दैट. या फिर आपको ये आइडिया नहीं है कि इंडिया के किस स्टेट में कौन सी साइट लोकेटेड है, तो ये आंसर करना काफी मुश्किल हो जाएगा केवल नाम देख करके. ऑलराइट, तो एक तो ये साइट है मोहनजोदारो. तो हमको देखना है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज क्या क्या हुई हैं. आई एम श्योर आपने पहले पढ़ा भी होगा इधर ऑन योर स्कूल या फिर अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे एनसीईआरटीज में, बट एक बार सिस्टमैटिकली इसको लिख लेना बहुत जरूरी होता है ताकि कुछ मिस ना हो जाए. राइट, नंबर 1 इज द ग्रेट बाथ. ग्रेट बाथ क्या है? इट वॉज, आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक बड़ा सा वाटर स्ट्रक्चर बनाया हुआ था, एक पूल टाइप का बनाया हुआ था, बट इट वॉज नॉट सिंपली अ स्विमिंग पूल. इसका कुछ और पर्पज रहा होगा. इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं वो लिख लीजिए. सबसे पहला फीचर है दैट इट वॉज मेड कंस्ट्रक्टिंग बर्न्ट और बेक्ड ब्रिक्स. तो जब ईंटों को भट्टी में गर्म किया जाता है, सेका जाता है, तो उसको बर्न्ट ब्रिक्स या फिर बेक्ड ब्रिक्स बोला जाता है. एंड हरप्पन्स पूरी दुनिया में दे वर द फर्स्ट टू यूज बर्न्ट ब्रिक्स और बेक्ड ब्रिक्स. इसके पहले कहीं पे भी बर्न्ड ब्रिक्स नहीं यूज किए जाते थे. ब्रिक्स यूज किए जाते थे लेकिन वो सिंपली सन ड्राइड ब्रिक्स होते थे, यानी कि मड को लिया जाता था, एक स्टेंसिल में डाला जाता था, रेक्टेंगुलर शेप बनाया जाता था एंड इट वाज लेफ्ट टू ड्राई इन दी सन. तो उतने पक्के नहीं होते हैं जितने बर्न्ड ब्रिक्स होते हैं. हरप्पन्स वर द फर्स्ट इन द एंटायर वर्ल्ड to use burnt bricks on a large scale in construction. Great Bath भी burnt bricks से ही बनाया गया है. So you can write this point down. It was made using burnt bricks or baked bricks. And further you can write the Harappans were the first in the world to use burnt bricks on a large scale. To use burnt bricks on a large scale. अच्छा, हरप्पन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स जो उनकी मेसनरी टेक्निक है वो इतनी एडवांस्ड हो गई थी that they were able to make this entire structure watertight, right? So you can add this point also. The Great Bath consisted of watertight surfaces, indicating the advanced masonry techniques of the Harappans. अब इसको यूज क्यों किया जाता था? दिस वाज नॉट यूज्ड फॉर रिक्रिएशनल पर्पसेस. ये सिंपली स्विमिंग पूल की तरह नहीं था. हमको इसका एग्जैक्ट यूज पता नहीं है, लेकिन हिस्टोरियंस अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको किस चीज के लिए यूज किया जाता था. एंड अब एक हिस्टोरिकल कंसेंसस एग्जिस्ट करता है which says that this was probably used for ritual purposes. तो आप देखते होंगे कि कई सारी रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं among various religions जहां पे रिचुअल बेदिंग करनी होती है on specific days. So it was probably for this purpose that the Great Bath was used. So you can write this also.
most historians agree that the great bath was used for ritual bathing. ठीक है, तो एक तो मेजर डिस्कवरी है ग्रेट बाथ। कहां पे है ये? मोहनजोदारो में मिला है। सेकंड, मोहनजोदारो से क्या मिला है? द ग्रेट ग्रेनरी। ग्रेनरी होता क्या है? अ प्लेस वेयर फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड। ठीक है, अब दी डिस्कवरी ऑफ अ ग्रेट ग्रेनरी आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है? सबसे पहले तो कि अगर ग्रेट ग्रेनरी है तो यानी कि फूड स्टोरेज का वहां पे एक प्रोविजन रहा होगा। एंड फूड स्टोरेज अगर हो रहा है तो यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज काफी एडवांस्ड रही होंगी, क्योंकि इतना ज्यादा उन्होंने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अचीव कर ली दैट सम ऑफ इट वाज लेफ्ट ओवर, जिसको हम सरप्लस बोलते हैं, जिसको अगर कोई इमरजेंसी का पीरियड है या फिर एज अ स्टॉक ऑफ ग्रेन्स मेंटेन करना है, गोडाउन की तरह मेंटेन करना है, तो उसको हम रख सकते हैं। तो इट गिव्स यू एन आइडिया अबाउट द एडवांसमेंट ऑफ हड़प्पन एग्रीकल्चर। अच्छा, अब कई बार ग्रेन्स को पूरा का पूरा हटाया नहीं जाता था ग्रेनरीज से। सम ऑफ द ग्रेन्स माइट बी स्पिल्ड ओवर, कुछ वहीं पे रह गए होंगे, तो दे रिमेन्ड ओवर देयर, उनके फॉसिल्स बन गए। फॉसिल्स को स्टडी करके हम ये बता सकते हैं कि हड़प्पन कौन कौन सी क्रॉप्स को ग्रो करते थे, उनका क्रॉपिंग पैटर्न क्या था, कितने सीजन्स में क्रॉप्स को ग्रो करते थे, राइट? ऑल ऑफ दीज थिंग्स वी कैन गेट टू नो अबाउट देम। अच्छा, अगर कोई इस ग्रेट ग्रेनरी को किसी ने इस ग्रेट ग्रेनरी को बनाया है और कोई इसको कलेक्ट कर रहा है, तो व्हाट डज दैट टेल यू? कोई ना कोई सिविक अथॉरिटी रही होगी, वेदर इट वाज म्युनिसिपल अथॉरिटी और वेदर इट वाज अ सेंट्रल अथॉरिटी, ये हमको नहीं पता है, लेकिन कोई ना कोई सिविक अथॉरिटी रही होगी विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग नॉट ओनली द टाउन बट ऑल्सो फॉर स्टोरिंग ऑफ ग्रेन्स। कोई सिविक प्लानिंग या फिर टाउन अथॉरिटी ये काम करती होगी। दिस मे ऑल्सो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ टैक्सेशन सिस्टम, राइट? कि टैक्स के तौर पे हो सकता है इसको कलेक्ट किया जा रहा हो। एंड फाइनली, अगर खेतों से विच वर लोकेटेड आउटसाइड द सिटीज लार्ज क्वांटिटी में ग्रेन्स को सिटी के सेंटर में ला के स्टोर किया जा रहा है, तो दे मस्ट हैव आल्सो डेवलप्ड एडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स, राइट? तो ट्रांसपोर्टेशन में काफी उन्होंने एडवांसमेंट अचीव कर लिया होगा। सो द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रेट ग्रेनरी गिव्स यू एविडेंस ऑफ all of these aspects, right? Very quickly you can write these down. This discovery suggests a highly advanced agricultural base along with a large surplus, comma, the presence of a civic authority responsible for collection and storage of these grains, comma, advanced transportation system to transport large quantities of grains to the city from the farms, and maybe even a taxation system, full stop. Further, grain fossils also inform us about the cropping practices of the Harappans, right? So this was the discovery of the great granary. Another important discovery, you can write assembly hall. तो मोहनजोदारो से एक मल्टी पिलर्ड असेंबली हॉल हमको मिला है। अब वी डोंट नो कि असेंबली हॉल क्यों बनाया गया था, किस पर्पस के लिए बनाया गया था, बट इट मे इंडिकेट दैट इट वाज यूज्ड फॉर असेंबली और लार्ज गैदरिंग्स ऑफ पीपल, मे हैव बीन फॉर वेरियस पर्पसेस। हो सकता है पॉलिटिकल असेंबली, हो सकता है रिलीजियस असेंबली, हो सकता है ओपन कोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हो, या फिर एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, राइट? तो इट मे हैव बीन यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, बट एक असेंबली हॉल यहाँ से हमको मिला है। अच्छा, नेक्स्ट
You can write the bronze figure of a dancing girl has also been discovered from मोहनजोदारो। तो ये आपने अपनी एनसीईआरटीज में इसकी तस्वीर जरूर देखी होगी। एक छोटी सी मूर्ति है ब्रॉन्ज की बनी हुई, एक डांसिंग गर्ल उसमें दिखाई गई है, राइट। तो द डिस्कवरी ऑफ दिस डांसिंग गर्ल also gives you various insights into the Harappan civilization, their culture and their preferences or tastes। अच्छा, ये यहाँ की मेटल स्किल को भी डिपिक्ट करता है। सबसे पहले आप इसको लिख सकते हैं एक एक करके। This discovery indicates the advanced level of metallurgy in the Harappan civilization. In the Harappan civilization. Full stop. Next point. It was made using the lost wax technique. कौन सी टेक्निक? Lost wax technique. इसको एक और नाम से जाना जाता है। It is also known as the सिर पर्ड्यू टेक्निक। ठीक है, बहुत सिंपल सी टेक्निक होती है। सबसे पहले एक वैक्स का ब्लॉक लिया जाता है, जो भी डिजायर्ड शेप होता है उसको आर्टिस्ट वैक्स में कार्व करता है। ठीक है, तो आपको एक वैक्स का स्कल्पचर मिल गया। अब उसके अराउंड एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्ट बनाया जाता है, जिसमें एक छोटा सा होल छोड़ दिया जाता है। ऑलराइट, देन दैट कास्ट इज अलाउड टू सेट। एक बार सेट हो गया, फिर उसको किसी अवन में बेक किया जाता है। तो उससे होगा क्या, जितना भी वैक्स होगा वो मेल्ट हो जाएगा। आर्टिस्ट उसको अवन से बाहर निकालेगा, सारा वैक्स गिराएगा और उसमें मोल्टन मेटल को पोर कर देगा। एंड वंस दैट मेटल फ्रीजेस और वंस इट सेट्स, तो फिर कास्ट को तोड़ दिया जाता है एंड यू गेट द डिजायर्ड स्कल्पचर। इसको बोला जाता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक और द सिर पर्ड्यू टेक्निक। अच्छा, ये किससे बना हुआ था? ब्रॉन्ज से बना हुआ था। ब्रॉन्ज होता क्या है? इज इट अ प्योर मेटल? नो, इट इज एन एलॉय। इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स। कौन से टू मेटल्स? कॉपर और टिन को बना करके ये ब्रॉन्ज बनाया जाता है, को मिला करके ये ब्रॉन्ज बनाया जाता है। सो इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। दिस ऑल्सो टेल्स यू दैट द हड़प्पन्स हैड मास्टर्ड द स्किल ऑफ मेकिंग एलॉयज। तो एलॉय मेकिंग में वो मास्टरी हासिल कर चुके थे। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। The dancing girl and her various ornaments, hairstyle, clothing, etc. indicate the fashion preferences of the Harappans. Full stop. It also tells us that the Harappans were fond of music and dance. तो एक मूर्ति से हमको इतनी सारी चीजें एक सिविलाइजेशन के बारे में पता लग सकती हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखो और नेक्स्ट डिस्कवरी, अ बियर्डेड प्रीस्ट, और यू कैन राइट द स्टोन बस्ट or stone torso of a bearded priest has also been discovered from Mohenjo-daro, right? तो stone bust of a bearded priest हमको यहाँ से मिला है। तो इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जल्दी से उसको लिख लीजिए। सबसे पहले तो इस स्टोन का बना हुआ है। एक मेल का जो अपर पोर्शन होता है, जिसको आप हिंदी में धड़ बोलते हैं या फिर टॉर्सो बोलते हैं अंग्रेजी में, वो मिला है हमको, राइट। एंड यहाँ पे जो पर्सन है उसकी एक दाढ़ी है, राइट। तो इट इज अ वेल ग्रूम्ड बियर्ड। तो यू कैन राइट इट इज अ स्टोन बस्ट ऑफ अ वेल ग्रूम्ड मेल who appeared to be of high social status। हाई सोशल स्टेटस का है, ये हमको कैसे पता चलेगा? एक तो उसकी दाढ़ी काफी
वेल ग्रूम्ड है, सो ही वाज क्वाइट कॉन्शियस ऑफ हिज लुक्स. अच्छा, देन जो उसने कपड़े पहने हुए हैं, जो उसने ज्वेलरी पहनी हुई है, उससे भी हमको ये पता लगता है. एंड ऐसा कोई और हमको बस नहीं मिला है, तो इट इंडिकेट्स दैट दिस वाज समवन हु वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज व्हाई हम ये बोल रहे हैं कि इट वाज ऑफ एन इंपॉर्टेंट पर्सन ऑफ अ हाई सोशल स्टेटस. राइट, तो इसमें एक और पॉइंट, आप एक दो पॉइंट और लिख सकते हैं. ही शोन wearing a drape covered in a trefoil pattern. ट्रेफॉइल पैटर्न, तो आपने देखा होगा कि ये ऐसी लीफ वाले कई सारे पैटर्न्स बनाए जाते हैं, इसको बोला जाता है ट्रेफॉइल पैटर्न. तो उसने जो कपड़ा पहना हुआ है उसके ऊपर इस तरह के पैटर्न्स बने हुए हैं कई सारे. ऑल राइट, फर्दर ही इज ऑल्सो वेयरिंग अ फिलेट. तो फिलेट होता है, आप इसको मांग टीका की तरह बोल सकते हैं, बट इट वाज वोर्न बोथ बाय मेन एंड women. राइट, तो अराउंड दी फोरहेड इसको पहना जाता है. इट इज एन ornament. It would probably have been made out of some, you can say, precious metal such as gold. Right, so he was also shown wearing a fillet. अच्छा, next point लिखो. He is known as a priest because his eyes are half closed as if in meditation. तो इसको priest क्यों बोला? क्योंकि इसकी eyes half closed दिखाई गई हैं, almost as if he is in meditation. तो meditate कर रहा है, तो इसलिए इसको bearded priest बोल दिया गया है. अदरवाइज इसको और नामों से भी जाना जाता है. He is also known as the bearded priest king of Mohenjo-daro. Right, तो this was another important discovery. Next लिखो. The largest collection of Harappan seals has been found from Mohenjo-daro. तो हरप्पन सिविलाइजेशन का एक यूनिक फीचर है कि यहाँ पे मिट्टी की या फिर स्टोन की बनी हुई सील्स पाई जाती हैं. यूजुअली ये स्क्वायर शेप की होती थी, बहुत छोटी 2 by 2 इंचेस की ये सील्स होती थी. इनके ऊपर हरप्पन स्क्रिप्ट और some images of plants, animals और मे बी इवन डेटीज, देवी देवताओं की भी तस्वीरें इस पे एनग्रेव करी जाती थी. तो इन पे इंटाग्लियो कार्विंग्स करी जाती थी. इनको अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जा सकता होगा, बट मोस्ट हिस्टोरियंस से दैट इट वाज यूजुअली यूज्ड एज अ मार्क ऑफ अथॉरिटी, ओनरशिप, और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में हो सकता है इनको एक सील की तरह यूज किया जाए, एंटी टैंपरिंग डिवाइस की तरह यूज किया जाता हो. कि अगर मान लीजिए आप हड़प्पा से मेसोपोटामिया कुछ ग्रेन्स को भेज रहे हैं और उस पर एक गीली मिट्टी पे सील आपने ठप्पा लगा दिया, एंड इफ दैट सील इज ब्रोकन, तो इसका मतलब दैट द कंटेंट्स ऑफ दैट केस हैव बीन टैम्पर्ड विद. राइट, तो एक सिक्योरिटी डिवाइस की तरह भी हो सकता है यूज किया जाता हो. देन वन आइडिया वाज आल्सो फ्लोटेड कि हो सकता है इसको सिक्कों की तरह यूज किया जाता हो, कॉइन्स की तरह यूज किया जाता हो, एक्सचेंज की तरह यूज किया जाता हो. But most historians do not subscribe to this idea. It was quite improbable. And most historians believe कि हड़प्पन civilization के टाइम पे इकोनॉमी मोनेटाइज नहीं थी, एंड जितना भी ट्रेड होता था वो बार्टर सिस्टम पे बेस्ड होता था. ऑलराइट, सो कुछ इंपॉर्टेंट सील्स जो हमको मिली हैं, दे आर द सील ऑफ द मदर गॉडेस एंड द पशुपति सील. जॉन मार्शल ने इसको बोला that it was also known as the proto-Shiva seal. Right. तो जनरल मैं आपको डिक्टेशन सील्स के बारे में बाद में दूंगा जब हम उनकी मटेरियल लाइफ डिस्कस कर रहे होंगे. राइट नाउ आई वांट यू टू टेक डाउन दीज टू नेम्स. तो मदर गॉडेस और पशुपति सील भी हमको मोहनजोदारो से मिली है. यू कैन राइट दिस डाउन. द मदर गॉडेस सील depicts a female deity, with a plant emerging from her womb. इसका मतलब क्या हुआ?
कुछ इंडिकेट कर रहा है इनके बिलीफ सिस्टम के बारे में? दैट मदर गॉडेस वाज प्रोबेबली द गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी। तो अगर क्रॉप्स अच्छी चाहिए हो, या फिर मोर वेल्थ चाहिए हो, या फिर चिल्ड्रन चाहिए हो, तो प्रोबेबली मदर गॉडेस को ये प्रे करते होंगे। ऑलराइट, with a womb, with a plant emerging from her womb. Full stop. It also shows a man preparing to sacrifice a woman with a knife. Preparing to sacrifice a woman with a knife. तो एक आदमी दिखाया गया है जो किसी औरत की बलि चढ़ाने जा रहा है एक खंजर लेकर के। तो दिस ऑल्सो टेल्स यू दैट प्रोबेबली हड़प्पन रिलीजन में सैक्रिफाइस का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस जरूर रहा होगा। आई एम नॉट सेइंग ह्यूमन सैक्रिफाइस प्रैक्टिस करते रहे होंगे, बट प्रोबेबली ह्यूमन सैक्रिफाइस जो दिखाया गया है, इट वाज ओनली अ सिंबॉलिक जेस्चर अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सैक्रिफाइस। ऑलराइट, तो गॉड और मैन के बीच में रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट एक ट्रांजैक्शन की तरह दिखाया जाता था, दैट इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम द गॉड, यू हैव टू गिव समथिंग टू द गॉड, राइट? तो दिस वाज द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। इसको हम बोलते हैं दैट रिलीजन वाज मटीरियलिस्टिक, सिंपल चीजों के लिए प्रे करते थे, फिलोसॉफिकल रीजंस की वजह से प्रे नहीं करते थे, राइट? अच्छा, पशुपति सील के बारे में कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए, राइट डाउन। पशुपति सील depicts a horned deity. Horned deity, horned deity का मतलब ऐसा कोई भगवान जिसके देवता जिसके हॉर्न्स निकले हुए हैं, और he is wearing certain headgear, कोई क्राउन पहना हुआ है जिसमें हॉर्न्स निकले हुए हैं। Depicts a horned deity sitting in a yogic posture, sitting in a yogic posture, surrounded by animals, surrounded by animals. एनिमल्स को पशु भी बोला जाता है, दैट इज वाई पशुपति। तो 4 एनिमल्स इसके अराउंड दिखाए गए हैं। हु आर दीज 4 एनिमल्स? एक टाइगर दिखाया गया है, एक बफलो दिखाया गया है, एक एलिफेंट दिखाया गया है, एंड एक राइनोसरस दिखाया गया है, राइट? टाइगर, बफलो, एलिफेंट एंड राइनोसरस। काऊ नहीं दिखाया गया है, हॉर्स नहीं दिखाया गया है। यूपीएससी एक क्वेश्चन ऑलरेडी इससे पूछ चुका है, राइट? सो यू शुड रिमेंबर दीज। अच्छा, जो उनका सीट है और जो उनका थ्रोन है, उसके नीचे 2 डियर्स को भी दिखाया गया है, राइट? सो यू कैन राइट दिस आल्सो डाउन। फुल स्टॉप। देयर आर 2 डियर्स, देयर आर 2 डियर्स shown under his throne as well, shown under his throne as well, right? तो उस समय हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हमको जानकारी मिलनी शुरू ही हो रही थी, एंड बहुत ज्यादा पता नहीं था उनके बिलीफ सिस्टम्स के बारे में। एंड एक्सकवेशंस कौन कर रहे थे? अंग्रेज कर रहे थे। अंग्रेजों में ये बिलीफ था दैट जो हिंदू फेथ है या फिर हिंदू बिलीफ सिस्टम है, ये बहुत पुराना है, एंड इसकी शुरुआत आज से हजारों साल पहले हुई थी, and that is why they tried to find some link between the Harappan religion and the present day Indian religion. तो इनमें सबसे क्लोजेस्ट इनको फिगर मिले लॉर्ड शिवा। तो शिवा इज ऑल्सो नोन एज महेश, और द प्रोटेक्टर ऑफ एनिमल्स, और द गॉड ऑफ एनिमल्स। तो पशुपति को उन्होंने शिवा से एसोसिएट कर दिया, एंड दैट इज वाई जॉन मार्शल ने इस सील में जो डेटी दिखाया गया है उसको प्रोटो शिवा भी बोल दिया, राइट? तो एक आप सब पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। Pashupati was also identified as Proto-Shiva, was also identified as Proto-Shiva. All right. अब ये तो 2 सबसे आइकॉनिक सील्स मिली हैं यहाँ पे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अ नंबर ऑफ अदर सील्स वर आल्सो फाउंड, एंड इन सील्स में भी कई सारे अलग अलग एनिमल्स की या फिर ह्यूमंस की तस्वीरें बनाई गई हैं। मोस्ट कॉमन एनिमल फिगर कौन सा मिलता है आपको, ये आपको जानना जरूरी है।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द मोस्ट कॉमनली डिपिक्टेड एनिमल ऑन हरप्पन सील्स was the one-humped bull. Was the one-humped bull. Right. So this was the most commonly depicted animal. All right. So this is about the seals. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, और नेक्स्ट डिस्कवरी फ्रॉम मोहनजोदारो, कई जगहों पे कॉटन क्लॉथ के फ्रैगमेंट्स मिले हैं, कॉटन क्लॉथ और कॉटन टेक्सटाइल वीविंग से एसोसिएटेड कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमको मिले हैं, सच एज द स्पिंडल, वर्ल एंड नीडल्स। राइट। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आपको किसी कारखाने में नहीं डिस्कवरी हुई है। These instruments and cotton cloth fragments have been found from inside the homes of the people at Mohenjo-daro and at other Harappan sites. इसका मतलब क्या हुआ? That cotton weaving and cotton spinning were probably daily activities जो कि हर हरप्पन करता था, whether of a lower status or a higher status. Right. So it was, you can almost say, cotton textile was a cottage industry during the Harappan civilization. You can write this down. These discoveries have been made from private homes, telling us that cotton spinning, weaving, and stitching were performed by people of all backgrounds. Right. तो एक साइट हो गई हमारी मोहनजोदारो. These were the important discoveries made here. नेक्स्ट साइट लिखो, हरप्पा. राइट. तो हरप्पा के बारे में हमें क्या पता है? इट वॉज द फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड. जॉन मार्शल एंड डीआर साहनी ने एक्सकवेट करी थी. कहां पे लोकेटेड है ये? मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, पाकिस्तान, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर रावी. राइट. तो ये इंफॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है. यहाँ पे क्या क्या डिस्कवरीज हुई हैं? सबसे पहले तो यहाँ पे 12 ग्रेनरीज डिस्कवर करी गई हैं. अब हरप्पा में एक बड़ी सी ग्रेट ग्रेनरी डिस्कवर करी गई, सॉरी मोहनजोदारो में एक बड़ी सी ग्रेट ग्रेनरी डिस्कवर करी गई थी, और हरप्पा में 12 छोटी छोटी ग्रेनरीज डिस्कवर करी गई हैं. तो ये एक ही जगह पे प्रेजेंट है, और 2 पैरेलल रोज ऑफ 6 में ये एक दूसरे के आमने सामने बनाई गई हैं. इसका भी सिग्निफिकेंस वही है जो कि ग्रेट ग्रेनरी का था. ठीक है. तो 12 ग्रेनरीज हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम हरप्पा. अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ और भी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई हैं, सच एज रेड सैंडस्टोन, मेल टॉर्सो हैज बीन डिस्कवर्ड. तो एक रेड सैंडस्टोन का मेल टॉर्सो बना हुआ है, वो डिस्कवर किया गया है यहाँ से. अच्छा, इसमें यूनिक फाइंडिंग क्या है कि जो टॉर्सो है उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है, सच एज शोल्डर्स हो गए, या फिर जो हिप वाला रीजन हो गया, या नेक वाला रीजन हो गया, वहां पे छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं. एंड ये होल्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इससे कुछ और चीजें अटैच रही होंगी. तो शोल्डर से आर्म्स अटैच रहे होंगे, नेक से हेड अटैच्ड रहा होगा, और हिप्स से थाइज एंड लेग्स अटैच्ड रहे होंगे. बट वो सब टूट के गिर गया है. नाउ ओनली दिस मेल टॉर्सो रिमेन्स. तो जैसे आपने जीआई जो वगैरह के फिगर्स देखे होंगे जिसमें मूवेबल आर्म्स, लेग्स एंड हेड होता है, उसी तरह के टॉयज ये हरप्पन्स भी बनाते थे. राइट. सो यू कैन एड दिस पॉइंट ऑल्सो.
red sandstone male torso, colon, with movable limbs indicated by circular holes around the shoulders, neck and hips. Around the shoulders, neck and hips. अच्छा, नेक्स्ट लिखो, a male dancing figure has also been discovered from Harappa. लेकिन इसके भी लिम्स टूटे हुए हैं, इसका सर नहीं है, राइट। एंड जॉन मार्शल ने जब सबसे पहले इसको देखा तो ही कॉल्ड इट द नटराज। सो दिस इज अ स्टोन स्कल्पचर ऑफ अ डांसिंग मेल। अब इसका जो पॉस्चर है वो नटराज के पॉस्चर से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, दैट इज व्हाई जॉन मार्शल कॉल्ड इट द नटराज। अच्छा, हड़प्पा से हमको एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी मिलती है कि अलग अलग पैटर्न्स में बेरियल्स करे जाते थे, यानी कि मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था, लेकिन दफनाने का स्टाइल अलग अलग होता था। सो यू कैन राइट डिफरेंट burial practices such as direct burial, urn burial, coffin burial and partial burial, right? तो डायरेक्ट बेरियल में क्या होगा कि जो भी डेड बॉडी है उसको विदाउट एनी कॉफिन बेरी कर दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। कॉफिन बेरियल में एक ताबूत में पहले डेड बॉडी को रखा जाएगा, फिर उसके बाद उसको बेरी किया जाएगा। अर्न बेरियल में क्या होता है, फर्स्ट द डेड बॉडी इज गोइंग टू बी क्रीमेटेड, और जो बची हुई उसकी एशेज हैं उसको एक पॉट में कलेक्ट किया जाएगा जिसको अर्न भी बोला जाता है, एंड फिर उस अर्न को बेरी कर दिया जाएगा। और पार्शियल बेरियल में क्या होता है कि डेड बॉडी को फर्स्ट इट विल बी लेफ्ट इन द नेचर, एंड वो जब डिकम्पोज हो जाएगी तो सारी बोन्स को कलेक्ट किया जाएगा, उसको एक अर्न में रखा जाएगा, एंड देन दैट इज बेरिड। तो द प्रेजेंस ऑफ दीज डिफरेंट बेरियल प्रैक्टिसेस क्या इंडिकेट करता है, राइट? बताइए जरा कि व्हाट डज द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट बेरियल प्रैक्टिसेस इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन इंडिकेट? सिंपल है कि अलग अलग बेरियल प्रैक्टिसेस हैं, यानी कि अलग अलग रिचुअल्स एसोसिएटेड होंगे। एंड रिचुअल्स किसके अलग अलग होते हैं? जिनके अलग अलग रिलीजन्स होते हैं। सेम थिंग यू विल गेट टू फाइंड इन टुडेज रिलीजन्स। हिंदूज की बेरियल प्रैक्टिसेस अलग हैं, हिंदूज की जो फाइनल राइट्स होते हैं वो अलग हैं, पारसीज के अलग हैं, मुस्लिम्स के अलग हैं, क्रिश्चियंस के अलग हैं, एटसेट्रा, right? So the existence of different burial practices indicates the presence of several religions in the Harappan society. Okay, अच्छा, अब next लिखिए नंबर 3, next important site, that is कालीबंगन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये है कहाँ पे। इट इज लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, on the banks of or on the dried up banks of the river घग्गर, जिसको पहले बोला जाता था सरस्वती रिवर, जो कि अब सूख गई है। दैट रिवर इज नोन एज द रिवर घग्गर। तो इसके बैंक्स पर एक कालीबंगन की साइट हमको मिली है। तो यहां से हमको क्या इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कवर करी है हमने? नंबर 1, it gives evidence of, write down, it gives evidence of a pre-Harappan culture. ठीक है, तो हिस्टोरियंस अग्री कि ये अचानक से डेवलप होने वाली सिविलाइजेशन तो रही नहीं होगी, ग्रेजुअली ये डेवलप हुई होगी फ्रॉम अग्रेरियन सोसाइटीज, न्यूलिथिक एज की सोसाइटीज से कुछ और डेवलपमेंट हुआ होगा, कैलकोलिथिक कल्चर्स में ये
तब्दील होंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे इनका एग्रीकल्चर एक्सपैंड हुआ तो साइज ऑफ द सेटलमेंट मस्ट हैव एक्सपैंडेड आल्सो, राइट। तो छोटे छोटे टाउन्स बने होंगे। व्हेन दीज टाउन्स स्टार्टेड कंडक्टिंग ट्रेड विद ईच अदर, ट्रेड नेटवर्क्स इमर्ज हुए होंगे। दिस लेड टू एन एक्सप्लोजन ऑफ सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि जब ये टाउन्स में ट्रेड एंड कॉमर्स शुरू हुआ तो आर्टिस्ट भी यहाँ पे फ्लॉक करने लग गए होंगे, कई सारे सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स भी यहाँ पे आके रहने लग गए होंगे। तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनने लग गई। ऑल्दो जो आप आज इंडस्ट्री, मैकेनाइज्ड इंडस्ट्री देखते हैं, उस तरह की इंडस्ट्री नहीं, लेकिन कारखाने बनने लग गए होंगे, राइट। इसकी वजह से टाउन्स का साइज और भी बड़ा हो गया एंड ग्रेजुअली दिस सिविलाइजेशन मैच्योर्ड इनटू अ प्योरली अर्बन सिविलाइजेशन, जहां पे जो कॉमन लाइफ है दैट वाज डोमिनेटेड बाय द अर्बन कल्चर। लेकिन ये प्रोसेस ग्रेजुअली हुआ एंड मेनी हिस्टोरियंस अग्री दैट इट वुड हैव टेकन 3 to 4,000 years टू डू सो। तो हरप्पन सिविलाइजेशन की मतलब जितने भी हम फीचर्स डिस्कस कर रहे हैं दैट रिफर्स टू द मैच्योर फेज, जब सारे के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स इमर्ज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल लार्ज नंबर ऑफ वेरी बिग टाउन्स एंड सिटीज जो कि बहुत डिटेल में प्लान किए गए हैं, या फिर वेरी लार्ज एंड एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क जहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज में लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। द डिसमिनेशन ऑफ स्क्रिप्ट एवरीवेयर, तो हर जगह पे आपको स्क्रिप्ट देखने के लिए मिल जाएगी। ऑल ऑफ दीज वर फीचर्स ऑफ द मैच्योर फेज। लेकिन इसके पहले वाले जो फेजेस में ये सारे फीचर्स जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट हो। वन सच साइट वाज कालीबंगन। यहाँ पे आपको प्री हरप्पन साइट भी देखने, प्री हरप्पन कल्चर भी देखने के लिए मिल रहा है, अर्ली हरप्पन कल्चर भी देखने के लिए मिल रहा है, और मैच्योर हरप्पन कल्चर भी देखने के लिए मिल रहा है। देखिए जहां पे अगर आप इसका मैच्योर हरप्पन दिखेगा यानी कि वेल डेवलप्ड हरप्पन फीचर्स, उसके नीचे सारे फीचर्स नहीं डेवलप हुए हैं, और उसके नीचे आपको प्री हरप्पन साइट कल्चर भी देखने के लिए मिलेगा। तो तीनों चीजें यहाँ पे कालीबंगन में हमको मिली हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, यू कैन राइट अ फायर ऑल्टर has also been discovered from Kalibangan. A fire altar has also been discovered from Kalibangan. अब ऑल्टर को यूज क्या किस लिए किया जाता है? सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। हवन कुंड आपने देखा होगा सबने, तो उसी से मिलता जुलता होगा, राइट। लेकिन हम कह नहीं सकते हैं कि इसको एग्जैक्टली क्यों यूज किया जाता था। कई हिस्टोरियंस ऐसे भी बोलते हैं कि सिंपली इसको तंदूर की तरह भी यूज किया जा सकता होगा, बट मोस्ट हिस्टोरियंस से दैट इट वाज प्रोबेबली यूज्ड फॉर रिचुअल सैक्रिफाइसेस, राइट। So you can write down fire altars may have been used for ritual sacrifice. And third important discovery हमको मिली है a plowed field. A plowed field has been found. तो plowed field है क्या? एक ऐसा फील्ड जिसके ऊपर हल चलाया गया, उसको कहते हैं प्लाउड फील्ड। तो हल जो चलाया गया उससे फरोज बने जो छोटी छोटी रिजेस, लेकिन हमको कोई हल नहीं मिला है, कोई प्लाव नहीं मिला है। ऐसा क्यों हुआ होगा? probably because it was made out of some perishable material such as wood. तो wood तो डिसइंटीग्रेट हो गया, जो हल था वो तो डिसइंटीग्रेट हो गया, लेकिन प्लाउड फील्ड जैसा का जैसा हमको मिल गया है। ऐसा हुआ कैसे कि प्लाव तो डिसइंटीग्रेट हो गया लेकिन प्लाउड फील्ड हमको मिल गया है। अब कालीबंगन कहाँ पे लोकेटेड था? इट वाज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरस्वती और द रिवर घग्गर। यहाँ पे हर साल फ्लडिंग होती थी, राइट। तो एक बार बाढ़ इतनी जोर से आई होगी कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मड वुड हैव बीन डिपॉजिटेड ऑन दैट प्लाउड फील्ड, एंड इसके बाद इसको केयर नहीं किया गया। द प्लेस वाज प्रोबेबली डिजर्टेड। यहाँ पे जो लोग रहते थे, जो फार्मर इस फील्ड को कल्टिवेट करता था, वो यहाँ से छोड़ के चला गया होगा, एंड उसके बाद धीरे धीरे इसके ऊपर और डिपॉजिट्स हर साल आकर के जमा होते रहे, एंड देयरफॉर जो फरोज बने हुए थे वो वैसे के वैसे बने रह गए। सो दस द प्रेजेंस ऑफ अ प्लाउड फील्ड इंडिकेट्स प्लान्ड कल्टीवेशन ड्यूरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन। और ये मिला कहां से है?
कालीबंगन से मिला है। ऑलराइट, तो कालीबंगन से ये 3 इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हमको देखने के लिए मिलती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट इज लोथल। अब लोथल सबसे पहले है कहां पे? Alright, I'm asking you to unmute yourself, so you can unmute yourself and ask me. Alright, चलिए। हाँ, give me 1 second. हाँ, so we are talking about लोथल। तो सबसे पहले लोथल है कहाँ पे? It is in गुजरात। On the banks of which river? On the banks of the river भोगवा। राइट, यहाँ से इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज क्या हुई हैं? नंबर 1 सबसे फेमस डिस्कवरी है लोथल से, दैट इज मैन मेड डॉकयार्ड। सॉरी, डॉकयार्ड क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द कोस्ट जहां पे बोट्स या शिप्स आकर के डॉक कर सकती हैं। आप इसको स्मॉल स्केल पे पोर्ट की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस वाज अ मैन मेड डॉकयार्ड। किस मटेरियल से बनाया गया था? इट वाज मेड आउट ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। डॉकयार्ड मेड आउट ऑफ burned bricks has been found from here, right? So it was the first man-made dockyard in India. और ये क्या इंडिकेट करता है? दैट द हड़प्पन्स पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम ट्रेड, यानी कि सी ट्रेड में ये पार्टिसिपेट करते रहे होंगे। इट इंडिकेट्स दैट द हड़प्पन्स पार्टिसिपेटेड इन मैरीटाइम ट्रेड। सेकेंड डिस्कवरी क्या है? कि यहां से राइस हस्क मिला है। राइस हस्क क्या होता है? तो जो धान से निकलने वाली भूसी होती है, जो लेफ्ट ओवर मटेरियल होता है, उसको हस्क बोलते हैं। लोथल से इसकी डिस्कवरी हुई है। इसका मतलब क्या होता है? दैट राइस वाज प्रोबेबली कल्टिवेटेड इन एंड अराउंड लोथल। सो राइस हस्क हैज आल्सो बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम लोथल। थर्ड, यहां पे भी कालीबंगन की तरह फायर ऑल्टर्स मिले हैं। राइट, अगेन हम बोल नहीं सकते कि एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए किए, बट प्रोबेबली यहाँ से बहुत सारी फॉरेन सील्स की डिस्कवरी हुई है। तो एक तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की खुद की सील्स होती थी, मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप की होती थी। इन पे इंटाग्लियो कार्विंग्स करी जाती थी। इस पे हड़प्पन स्क्रिप्ट और कुछ ह्यूमंस, एनिमल्स या फिर डेटीज के इमेजेस पाए जाते थे। हम इन सील्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम फॉरेन सील्स की बात कर रहे हैं, यानी कि मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन और पर्शियन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो मेसोपोटेमिया और पर्शिया में अलग तरह की सील्स बनाई जाती थी। पर्शियन सिविलाइजेशन में सिलिंड्रिकल सील्स बनाई जाती थी और मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन में सर्कुलर सील्स बनाई जाती थी। अब अगर पर्शिया और मेसोपोटेमिया की सील्स आपको लोथल से मिली हैं, तो इसका क्या क्लियर मतलब हुआ? दैट देयर मस्ट हैव बीन सम इंटरचेंज बिटवीन दीज थ्री सिविलाइजेशन, बिटवीन दीज थ्री कल्चर्स। हो सकता है इट मे सिंपली हैव बीन अ कल्चरल एक्सचेंज, कि लोग इधर से उधर आते जाते हो, बट प्रोबेबली इट वुड हैव बीन अ कमर्शियल एक्सचेंज। एक दूसरे के साथ ये ब्रिस्क ट्रेड करते रहे होंगे, राइट? सो यू कैन राइट द डिस्कवरी ऑफ मेसोपोटेमियन and Persian seals from Lothal indicates commercial interchange among these civilizations. Indicates commercial interchange among these civilizations. And last important discovery कि यहां से एक यूनिक बेरियल प्रैक्टिस डिस्कवर करी गई है, नोन एज डबल बेरियल। यानी कि दो लोगों को एक साथ दफनाया गया है।
राइट, तो इसका क्या मतलब हो सकता है, जल्दी से बताइए। हाँ, मुझे पता था कि यही बोलोगे, कि सती टाइप की कोई प्रैक्टिस रही होगी, बट दैट इज नॉट नेसेसरीली द केस, राइट। यहाँ पे जो डबल बेरियल हमको देखने के लिए मिला है, उसमें कहीं कई जगहों पे एक तो मेल और फीमेल है, सेकंड कुछ मेल एंड मेल हैं, और कुछ फीमेल एंड फीमेल स्केलेटन्स हमको देखने के लिए मिले हैं, राइट। इसका क्या मतलब हुआ, दैट वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि कोई सती होता होगा, हो सकता है कोई सता भी करता हो, लेकिन although these things do not give us any insights into practices such as sati, लेकिन हमको ये बताते हैं that they might have believed in the concept of life after death, कि अगर दो लोग जिंदगी में साथ हैं तो जिंदगी के बाद भी साथ में होने चाहिए. It also tells you that probably homosexual relationships were accepted in the Harappan civilization. लेकिन हम इतने ब्रॉड जनरलाइजेशंस नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, तो यू कैन सिंपली राइट double burials probably indicate the presence of monogamy among Harappans. Monogamy क्या होता है कि एक इंसान का एक ही पति या पत्नी होगा, अगर एक से ज्यादा स्पाउस होता है तो उसको बोलते हैं पॉलीगमी, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट साइट लिखिए, नंबर 5, चानहुद दारू. कहां पे है, इट इज इन सिंध, पाकिस्तान, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस. What is the unique feature of Chanuk Daru? It is quite unlike all the other Harappan sites. यहाँ पे यूनिक फीचर क्या है, लिखिए. चानू दारो was a factory site. ठीक है, फैक्ट्री साइट का मतलब क्या हुआ, दैट यहाँ पे प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग अलग चीजों को मैन्युफैक्चर करने की थी. क्या चीजें मैन्युफैक्चर करी जाती थी यहाँ पे, राइट डाउन. several workshops, tools, raw material and instruments associated with bead, bangle and jewelry manufacturing have been found here. ठीक है, तो कई सारे हमको कारखाने मिले हैं, उसमें यूज होने वाले कई सारे टूल्स मिले हैं, रॉ मटेरियल मिला है, सच एज कोरल मिला है जिसको मूंगा बोलते हैं, विच वाज क्वाइट पॉपुलर. कई सारे सेमी प्रेशियस एंड प्रेशियस मेटल्स मिले हैं, कई सारे सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिले हैं जिसके बीड्स या बैंगल्स या और ज्वेलरी बनाए जाते रहे होंगे, राइट. तो ये हमको चानू से मिला है. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ चानू जो कि क्वाइट यूनिक है, इज दैट यहाँ पे केवल एक सिंगल लेवल ऑफ सेटलमेंट था. बाकी हर हरप्पन साइट में आपको दो या उससे ज्यादा आपको लेवल्स मिलेंगे. फॉर एग्जांपल, जिसको बोला जाता है अपर टाउन एंड लोअर टाउन, राइट. लेकिन चानूदारो में आपको ये डिस्टिंक्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ पे केवल एक ही लेवल ऑफ सेटलमेंट था. तो राइट डाउन, चानूदारो इज ऑल्सो यूनिक because unlike other Harappan cities, it does not have two separate levels of settlement. अभी जब हम हरप्पन टाउन प्लानिंग के टॉपिक को कवर करेंगे तो वहां पे ये डिटेल में डिस्कस करेंगे. 2 सेपरेट लेवल्स ऑफ सेटलमेंट, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हरप्पन साइट लिखिए, नंबर 5, ढोलावीरा. कहां पे लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन दी कच्छ रीजन ऑफ गुजरात, on the banks of the river
लूनी। ठीक है, यहां से कई सारी इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हुई हैं, सच एज नंबर 1, एक साइन बोर्ड मिला है, एक बड़ा सा साइन बोर्ड मिला है जिसपे 10 सिंबल्स बने हुए हैं इन दी हरप्पन स्क्रिप्ट। राइट डाउन, a large signboard consisting of 10 large pictographic Harappan symbols. A large signboard consisting of 10 large pictographic Harappan symbols have been found here. Of course, हरप्पन स्क्रिप्ट अभी तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया है, तो हमें पता नहीं है ये साइन बोर्ड पे लिखा क्या हुआ है, लेकिन हमें इतना पता है कि ये बड़ा सा साइन बोर्ड धोलावीरा से मिला है और इस पे 10 अक्षर बने हुए हैं, और रादर आई शुड से 10 सिंबल्स बने हुए हैं। व्हाई एम आई यूजिंग सिंबल्स इंस्टेड ऑफ अल्फाबेट्स? क्योंकि जो हरप्पन स्क्रिप्ट थी इट वाज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, वहां पे अल्फाबेट्स की तरह पिक्चर्स या फिर सिंबल्स को यूज किया जाता था। ऑलराइट, नेक्स्ट डिस्कवरी क्या हुई है? अब जो कच्छ रीजन है ये आज आप देखेंगे तो बहुत एरिड रीजन है, राइट? यहाँ पे बरसात बहुत ज्यादा होती नहीं है। इट इज बिलीव्ड दैट ड्यूरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो यहाँ पे बहुत ज्यादा पानी नहीं होता था, ऑल्दो इट वाज ग्रीनर देन इट इज टुडे। अभी के मुकाबले उस समय ज्यादा पानी था लेकिन बहुत ज्यादा नहीं था। इट वाज अ वाटर डिफिशिएंट रीजन। तो कई सारी टेक्निक्स, कई सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे जरूरी हो गए which were necessary in order to conserve water. So several water conservation structures have been discovered intact from Dholavira. So write down water conservation system. Such as elaborate network of tanks, reservoirs, and drains have been discovered. अच्छा, थर्ड यूनिक डिस्कवरी क्या है? बाकी जो हरप्पन साइट्स थी वहां पे बर्न्ड ब्रिक्स को यूज किया जाता था, राइट? लार्ज स्केल पे बर्न्ड ब्रिक्स हरप्पन सिविलाइजेशन में यूज करी जाती थी कंस्ट्रक्शन में, चाहे वो पब्लिक बिल्डिंग हो चाहे प्राइवेट हाउसेस हो। लेकिन यहाँ पर स्टोन को यूज किया गया है एज द प्राइमरी बिल्डिंग मटेरियल। तो यू कैन राइट डाउन स्टोन was used as the primary building material instead of burnt bricks. अच्छा, एक और यूनिक फीचर है ढोलावीरा का कि बाकी हरप्पन साइट्स में इंस्टेड ऑफ चानुदारो हमेशा आपको 2 लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे, एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन, या फिर लोअर टाउन और सिटाडेल। लेकिन यहाँ पे 2 की जगह पे 3 लेवल्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सो 3 लेवल्स पे ये सिटी बसी हुई थी। एक तो अपर टाउन हो गया, एक लोअर टाउन हो गया और एक मिडिल टाउन हो गया, राइट? सो यू कैन राइट डाउन 3 levels of settlement. 3 levels of settlement, that is citadel, middle town and lower town. तो अपर टाउन को हम सिटाडेल भी बोलते हैं। इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव वॉल हुआ करती थी, राइट? तो इसलिए इसको फोर्ट्रेस की तरह आप कंसिडर कर सकते हैं, तो सिटाडेल बोल दिया गया है, राइट? तो 3 लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेशन और 3 लेवल्स ऑफ सेटलमेंट, that is citadel, middle town and lower town have been discovered. So these are the important discoveries from Dholavira. And last important site, number 6, is Rakhigadi. अब ये क्यों फेमस है? सबसे पहले तो ये है कहां पे? इट इज लोकेटेड इन दी हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा on the banks of the river Ghaggar, which is now dried up. तो उस समय इसको सरस्वती बोला जाता था, राइट? क्यों फेमस है ये? बिकॉज इट इज द लार्जेस्ट हरप्पन साइट।
टू बी एवर एक्सकवेटेड। तो बाकी जितनी भी साइट्स हैं उनके मुकाबले राखेगढ़ी की साइट एरिया में ज्यादा है, चाहे वो हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी बड़ी सिटीज भी क्यों ना हो, लेकिन राखेगढ़ी की साइट उन सबसे ज्यादा बड़ी है। सेकेंड, यहाँ पे हमको एक यूनिक काइंड ऑफ सैक्रिफाइस पिट मिली है, जिसको आप बोल सकते हैं एन एनिमल सैक्रिफाइस पिट। हैज ऑल्सो बिन डिस्कवर्ड फ्रॉम हियर। अब हमें पता कैसे है कि यहाँ पे एनिमल्स को सैक्रिफाइस किया जाता था, क्योंकि इस पिट से हमको एनिमल्स की बोन्स मिली हुई हैं, ठीक है। साथ में हमको फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं। तो अब वो थ्योरी जो बोलती है दैट दीज वर सिंपली नॉट तंदूर्स, ओवन्स नहीं थे, फायर ऑल्टर्स थे, वो भी और स्ट्रेंथन हो गया है, क्योंकि हमको रिचुअल एनिमल सैक्रिफाइस का एविडेंस मिल गया है और साथ में उसके बगल में ही फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं, राइट। अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट डिस्कवरी लिखिए दैट यहाँ पे जो ब्रिक्स होते थे दे वर नॉट बर्न्ड ब्रिक्स, ये टेराकोटा के ब्रिक्स बनाए जाते थे। तो यहाँ पे भी बिल्डिंग मटेरियल थोड़ा अलग था। ब्रिक्स में होता क्या है कि अर्थ को या फिर सॉइल को पैक किया जाता है और सीधे भट्टी में डाल दिया जाता है। लेकिन टेराकोटा में क्या होता है, इट इज बेक्ड क्ले। तो जो फाइन सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनको कलेक्ट किया जाता है, उनको भिगाया जाता है, फिर उसके बाद उनके ब्रिक्स बनाए जाते हैं। इनकी स्ट्रेंथ बाकी ब्रिक्स से ज्यादा होती है, राइट। एंड लास्टली, रिसेंटली यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है इन द फॉर्म ऑफ अ डीएनए स्टडी। आई एम श्योर कि अगर आपने पिछले 1-2 साल में न्यूज़पेपर को अच्छे से फॉलो किया है तो आपने राखी गढ़ी की डीएनए स्टडी के बारे में जरूर सुना होगा। तो साइंटिस्ट ने ये पाया दैट यहां पर R1A1 जीन मिसिंग है, ठीक है। एंड दिस हैज लेड टू some important historical conclusions about the origins and the people living in the Harappan civilization. अब ये R1A1 जीन एक यूनिक जीन है जो कि केवल कॉकसेस रीजन में जो लोग रहते थे वहां पे पाया जाता था, राइट। अर्लियर कुछ हिस्टोरियंस ने ऐसा बोला कि हरप्पन सिविलाइजेशन को इंडिजिनस पीपल ने नहीं बनाया था, कुछ फॉरेन सेटलर्स ने आकर के बनाया था। तो ईरान से आए हुए कुछ लोग यहाँ पे सेटल हुए, या फिर कॉकसेस रीजन से आए हुए कुछ लोग यहाँ पे सेटल हुए, और उन्होंने फिर हरप्पन सिविलाइजेशन को इजाद किया। सिमिलर लाइंस पे कुछ लोगों ने बोला कि हरप्पन सिविलाइजेशन अर्ली आर्यंस ने बनाया था, राइट। दे हैड आल्सो कम फ्रॉम दैट सेम रीजन ऑफ सेंट्रल एशिया एंड यूरेशिया। आर्यंस और ईरानियंस के जीन में आपको R1A1 जीन मिल जाएगा, लेकिन the absence of this gene in the skeletons found in राखीगढ़ी ये क्या बताता है, दैट ये थ्योरी अनट्रू है। तो इस थ्योरी को इसने एक सिरे से रिजेक्ट कर दिया। कंक्लूसिव एविडेंस हमको ये मिला है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में जो लोग रह रहे थे दे वर इंडिजिनस पीपल, जो इंडिया में ओरिजिनली लोग रह रहे थे उन्होंने ही हरप्पन सिविलाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था। इट वाज नॉट द क्रिएशन ऑफ सम फॉरेन सेटलर्स, राइट। So you can write this down. A famous DNA study has proved the absence of the R1A1 gene, thus rejecting the theory of foreign or Aryan origin of the Harappan civilization. Full stop. Next point. The Harappan civilization was established by people indigenous to the Indian subcontinent. ठीक है. So this is the conclusion of the DNA study done on skeletons found from राखीगढ़ी. तो again a very important site. और क्योंकि रिसेंटली ये न्यूज में भी रहा है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है.
ओके, तो हमने एक और टॉपिक खत्म कर लिया है. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ टाउन प्लानिंग. आई थिंक 4 years बैक यूपीएससी ने इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा. आई एम राइटिंग दिस क्वेश्चन एंड देखते हैं कि जो हम डिस्कशन करेंगे इससे इसका आंसर हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. नंबर क्वेश्चन है, टू व्हाट एक्सटेंट हैज द urban planning and culture, sorry, of the Indus Valley civilization provided inputs to the present day urbanization. डिस्कस. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है? टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन. दूसरे वर्ड्स में बोलूं तो इसका सिंपल मतलब ये है, जो प्रेजेंट डे सिटीज हैं, इन व्हाट वेज आर दे इन्फ्लुएंस्ड बाय द अर्बन प्लानिंग ऑफ द हड़प्पन सिटीज. ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन सर्टेन पॉइंट्स और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हमको आंसर इसमें मिलता है कि नहीं मिलता है. तो सबसे पहले तो व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ द हड़प्पन टाउन प्लानिंग, इसको हम एक जगह पे लिस्ट कर लेते हैं. सबसे पहले तो आपको ये पता होगा कि हड़प्पन टाउन्स को एक ग्रिड पैटर्न में या फिर चेस बोर्ड पैटर्न में प्लान किया जाता था. ब्लॉक्स ऑफ हाउसेज या फिर सेटलमेंट्स बनाए जाते थे इन, जो कि रेक्टेंगुलर रहते थे, एंड जितनी भी स्ट्रीट्स होती थी वो एक दूसरे को राइट एंगल्स पे इंटरसेक्ट करती थी. राइट, तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं ग्रिड और चेस बोर्ड पैटर्न पर सिटीज को डिजाइन किया जाता था, सिटीज को प्लान किया जाता था. सेकेंड, ज्यादातर हड़प्पन सिटीज में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, दैट देयर वर 2 लेवल्स ऑफ सेटलमेंट. एक अपर टाउन होता था जहां पे यूजुअली रईस लोग या फिर रूलिंग क्लास के लोग रहते थे. यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स भी बनाई जाती थी और इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव वॉल बनाया जाता था. तो आप एक ऑलमोस्ट बोल सकते हैं फोर्टिफाइड सेटलमेंट बनाया जाता था. और जो लोअर टाउन होता था, यहाँ पे कॉमन लोग रहते थे, राइट, जो कि रूल्ड पॉपुलेशन है. तो सिटाडेल एंड लोअर टाउन, तो 2 लेवल्स ऑफ ऑक्यूपेशन. दिस वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर. अच्छा, थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, दैट दे वर द फर्स्ट इन द एंटायर वर्ल्ड जिन्होंने कवर्ड ड्रेनेज को इंट्रोड्यूस किया अपनी सिटीज में. राइट, तो हर घर से एक छोटी सी ड्रेन निकलती थी एंड इट यूज टू फीड इनटू द ड्रेन अंडरनीथ द स्ट्रीट अकम्पनिंग दैट हाउस. तो हर घर से एक छोटी सी ड्रेन निकली है एंड कहाँ पे गई है, ये जो स्ट्रीट है इस घर के बगल में, इसके बीच में एक कवर्ड ड्रेन होती थी, वहां पे जाके मिलती थी. अच्छा, फिर सारी की सारी जो छोटी छोटी स्ट्रीट्स हैं, दे यूज टू गो एंड मीट अ बिग स्ट्रीट, एंड इस बड़ी सी स्ट्रीट के नीचे भी एक मेजर ड्रेन हुआ करती थी. एंड द वेस्ट वाटर फ्रॉम द वेरियस हाउसेज, ये इस बड़ी ड्रेन में जाकर के डिपॉजिट किया जाता था. अब ये बड़ी ड्रेन कहाँ पे जाके खुलती थी, इट यूज टू ओपन आउटसाइड द सिटी, एंड इन ड्रेन्स की मेंटेनेंस भी सिविक अथॉरिटी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रही होगी. हमें ये कैसे पता चलता है, क्योंकि इन ड्रेन्स में आपको रेगुलर इंटरवल्स पे होल्स दिख जाएंगे जिनको मैनहोल्स बोला जाता है. तो कहीं पे अगर कोई ब्लॉकेज है तो सिंपली मैनहोल को हटा के उसको क्लियर किया जा सकता है. ऑलराइट, सो ये कवर्ड ड्रेनेज का जो पैटर्न है, ये पहली बार पूरी दुनिया में हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही इंट्रोड्यूस किया गया, और सेम चीज आपको मॉडर्न सिटीज में भी देखने के लिए मिल जाती हैं. अच्छा, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर वाज कि रेगुलर इंटरवल्स पे आपको वेस्ट बास्केट्स या फिर डस्टबिन मिल जाते थे, ताकि वहां पे कोई गंदगी ना फैले. राइट, वेस्ट पिट्स और बास्केट्स
were placed at regular intervals, and this used to keep the cities clean and hygienic. अच्छा, another important feature was कि regular intervals पे पोल्स लगाए जाते थे जिसके ऊपर ऑयल लैम्प्स को प्रोबेबली टांगा जाता होगा। तो स्ट्रीट लाइटिंग का प्रोविजन हरप्पन सिटीज में प्रेजेंट था। राइट, सो द प्रोविजन ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग वाज एन एसेंशियल फीचर ऑफ हरप्पन सिटीज। अब इसकी वजह से टाउन ब्यूटीफुल भी लगता था और सेफ भी रहता था। ओके, अच्छा, देन आपको कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स मिल जाएंगी जो कि पब्लिक यूज के लिए बनाई जाती थी हरप्पन सिटीज में। तो दीज शेयर्ड पब्लिक स्पेसेस such as stadiums, auditoriums, assembly halls, great baths, etc. They were essential features of the Harappan cities. Marketplaces भी कॉमन रहते थे, एंड सेम आपको चीज अपने मॉडर्न सिटीज में भी देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट, जो घर होते थे वो अलग अलग साइजेस के होते थे, अलग अलग क्वांटिटीज क्वालिटी के कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। जो रईसों के घर होते थे वो बहुत बड़े रहे होंगे, काफी पैलेशियल रेजिडेंसेस रहे होंगे, और जो गरीब रहे होंगे वो छोटे छोटे 1 या 2 कमरे के अपार्टमेंट्स में रहते होंगे। तो जैसे मॉडर्न सिटीज में आपको क्लास डिवाइड दिखता है इन अर्बन हाउसिंग, वैसा ही क्लास डिवाइड आपको हरप्पन सिटी की अर्बन हाउसिंग में भी दिखता था। राइट, तो हाउसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस यूज्ड टू बी प्रेजेंट इन दी हरप्पन सिटीज। और ये क्या डिपिक्ट करता था? दैट देयर वाज अ क्लास डिवाइड एंड इकोनॉमिक डिवाइड। अच्छा, और लास्टली हरप्पन हाउसिंग का एक एसेंशियल फीचर ये था कि घर के सामने, यानी कि जिस साइड पे स्ट्रीट है या फिर जिस साइड पे रोड है, वहां पे आपको कोई खिड़की या दरवाजा नहीं मिलेगा। खिड़की या दरवाजे आपको हमेशा दूसरी साइड पे मिलेंगे, राइट, ऑपोजिट साइड पे मिलेंगे। ऐसा क्यों होता था? दिस वॉज नॉट आउट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर प्राइवेसी और एनीथिंग लाइक दैट। बस इसका सिंपल कन्वीनियंस का कंसिडरेशन था कि अगर खिड़की या दरवाजा आपने इधर खोल दिया तो रोड कंजेस्ट हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। तो पीछे इसलिए बनाया जा रहा है ताकि कंजेशन ना हो। राइट, सेम फीचर आपको मॉडर्न डे सिटीज में भी देखने के लिए मिल जाएंगे, सच एज चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ में भी आपके घर के हमेशा 2 अप्रोचेस रहते हैं, एक तो आपके बैकयार्ड के थ्रू और एक जो है मेन रोड के थ्रू। मेन रोड में आपको कोई गेट खोलने की इजाजत नहीं होती है, अगर खोल दिया तो वहां पे सीधे फाइन लगता है। तो सेम थिंग इज गोइंग टू बी सेम थिंग वाज आल्सो प्रेवलेंट इन हरप्पन सिटीज एज वेल। तो रियर फेसिंग doors and windows was also an essential feature of the Harappan civilization. Now let us come back to the question. To what extent has the urban planning and culture of the Indus Valley civilization provided inputs to the present day urbanization discuss? तो आपको सारे important features of Harappan cities present हैं, बस अब आपको इसको modern urbanization से link करना है। वो कैसे करना है मैं डिक्टेट कर रहा हूं, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। राइट, तो राइट डाउन पॉइंट नंबर 1, द हरप्पन्स प्लान्ड देयर सिटीज ऑन द ग्रिड और चेसबोर्ड पैटर्न, ऑन द ग्रिड और चेसबोर्ड पैटर्न, फुल स्टॉप। द स्ट्रेट रोड्स एंड स्ट्रीट्स, तो सारी सड़कें और जितनी गलियां हैं वो बिल्कुल सीधी बनाई जाती थी। द स्ट्रेट रोड्स एंड स्ट्रीट्स intersected each other at right angles, तो 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को काटते थे। अच्छा, इसका फायदा क्या होता होगा कि अगर आपने इस तरह से सिटी को प्लान किया है एंड इफ यू हैव टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो आपके पास बी तक पहुंचने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस हैं। लेकिन अगर केवल एक मेन स्ट्रीट होती जिससे सारी की सारी जो स्मॉलर स्ट्रीट्स हैं वो जुड़ी होती, तो अगर आपको x से y तक पहुंचना होता तो आपके पास केवल एक ही रास्ता होता, और अगर ये यहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो जाए तो आप यहाँ पे अटक जाओगे।
राइट। तो कंजेशन को कम करने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है ग्रिड और चेस बेस्ड पैटर्न का। इसी तरह से रेडियल पैटर्न भी आप यूज कर सकते हैं कंजेशन को कम करने के लिए। अब ये चेस बोर्ड पैटर्न या रेडियल पैटर्न आपको किसी मॉडर्न साइट्स में देखने के लिए मिलता है, मॉडर्न सिटीज में देखने के लिए मिलता है, बिल्कुल मिलेगा। ऑल दी वेल प्लान मॉडर्न सिटीज, चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे न्यूयॉर्क हो, चाहे पेरिस हो, चाहे लंदन हो, यहाँ पे आपको ग्रिड बेस्ड पैटर्न देखने के लिए मिलता है, राइट। तो यू कैन राइट दिस डाउन। दिस kind of planning this kind of planning has certain benefits such as lower traffic congestion and is an important feature of all major cities, of all modern cities, you can write, of all modern cities such as Delhi, Chandigarh, Paris, etc. ठीक है। तो इस तरह से आपको लिंक करना है एलिमेंट्स ऑफ हरप्पन टाउन प्लानिंग और मॉडर्न अर्बन प्लानिंग को। ठीक है, कुछ एग्जांपल दे करके और एक लाइन यूज करके कि दिस फीचर वाज आल्सो इज आल्सो यूज्ड इन मॉडर्न अर्बन प्लानिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। The Harappan cities generally had two levels of settlement. The citadel and the lower town. Next point. The citadel consisting of all important public buildings and the citadel consisted of all important public buildings and residences of the ruling class. Next point. The lower town was meant for the common people and markets. मॉडर्न सिटीज में आपको ऐसा डिस्टिंक्शन देखने के लिए मिलता है कि रूलिंग क्लास अलग जगह पे रहती है, रूल्ड क्लास अलग जगह पे, बिल्कुल मिलता है। केस इन पॉइंट इज दिल्ली में जो सेंट्रल लोकेशन है लटियंस दिल्ली, वहां पे आपके जितने भी एमपी के हाउसेज हैं, जजेस के हाउसेज हैं, वो सब मिल जाएंगे। जितने भी बड़े जनरल्स हैं उनके रेजिडेंसेस मिल जाएंगे, जितने सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो उनके रेजिडेंसेस मिल जाएंगे, पीएम का रेजिडेंस, राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारा का सारा लटियंस वाले रीजन में मिल जाएगा। लेकिन जो उसके सराउंडिंग वाले रीजन है वहां पे आपको आम जनता रहती हुई दिखेगी, राइट। तो यू कैन राइट दिस डाउन। such distinction is also visible in modern administrative centers such as New Delhi. All right. अच्छा, थर्ड पॉइंट लिखो। The Harappans were the first in the world to introduce covered drainage with manholes at regular intervals. Full stop. This resulted in clean and hygienic living conditions. तो इस तरह का कवर्ड ड्रेनेज आपको दुनिया की हर मॉडर्न वेल प्लान्ड सिटी में देखने के लिए मिल जाएगा। इनफैक्ट यूरोपियन कंट्रीज या फिर अमेरिकन कंट्रीज में आप देखेंगे कि जितना बड़ा सिटी वो सरफेस के ऊपर बनाते हैं, ऑलमोस्ट उससे बड़ा सिटी सरफेस के नीचे प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट वाटर डिस्पोजल पाइपलाइंस एंड other structures, right? So you can write down, this is an important feature of almost all well-planned modern cities. Next feature क्या था? Waste pits and waste baskets or street lighting. So write down, Harappan cities
had lamp posts and waste pits or waste baskets at regular intervals along the roadside. Full stop. Not only did this keep the city safe and secure, but also healthy and hygienic. Full stop. Street lighting and waste disposal are considered essential elements of modern urban town planning और मॉडर्न टाउन प्लानिंग. तो जितना भी वेल प्लान्ड सिटी का एरिया होगा, हमेशा आपको दिखेगा कि रात में वहां पे लाइटिंग एडिक्वेट रहती है. दो रीजन्स आर कंसिडर्ड टू बी सेफ. हर जहाँ पे रेगुलर इंटरवल्स पे डस्टबिन बने होते हैं, तो सड़क पे या फिर पार्क्स में आपको लिटरिंग नहीं देखने के लिए मिलती है. तो इस वजह से बारिश भी अगर पड़ती है तो खूबसूरत लगता है, और पत्ता भी अगर गिरता है तो वो भी खूबसूरत लगता है. तो अगर आप सेंट्रल दिल्ली में लटियंस वाले रीजन में होंगे तो आपको ये फीलिंग जरूर आएगी, चाहे आप इंडिया गेट के अराउंड हो, चाहे आप पार्लियामेंट हाउसेस के अराउंड हो. तो दिस इज द फीलिंग दैट यू विल गेट, क्योंकि वो इतना वेल प्लान्ड है. राइट. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. तो दीज टू ऑल्सो वी हैव कवर्ड. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. shared community spaces such as assembly halls, stadiums, auditoriums, and marketplaces found in Harappan cities are also found in all modern cities. Since the provision of recreational activities is an important feature of modern urban planning. तो जितना भी जो भी अच्छी सिटीज होंगी वहां पे आपको इस तरह की पब्लिक बिल्डिंग्स जरूर देखने के लिए मिल जाएंगी. ऑलराइट. अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो. हाउसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस from large multi-roomed bungalows to single-roomed apartments indicated the existence of economic stratification, or you can write in other words, indicated the existence of different economic classes in Harappan cities. Full stop. Such class differences are also visible in all modern cities. And urban planners must take into account that basic amenities are provided to all classes. ठीक है. एंड लास्टली लिखिए. doors and windows were made in the rear of Harappan houses. In order to reduce
traffic congestion on the streets, in order to reduce traffic congestion on the streets. Full stop. This technique is also employed in many modern cities, such as Chandigarh, Thus, we can see that the essential elements of Harappan town planning have continued to heavily influence modern urban planners as well. Okay. So this is how you link the essential elements of Harappan town planning with the modern towns, और इसी तरह से आपको अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करना होगा. आप देखेंगे कि जो भी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वहां पे आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, बट जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा वो आपको रॉ इंफॉर्मेशन पे नहीं पूछेगा, हमेशा उसके एप्लीकेशन पे पूछेगा. अब ये तो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया, इसलिए हमको आंसर करना काफी आसान हो जाएगा. बट until and unless you practice answer writing on your own, तब तक आपको वो आदत नहीं पड़ेगी ये एक्सरसाइज करने की. एंड दैट इज व्हाई practicing answer writing is very important for success in your GS paper, in your mains paper, right? तो I cannot stress that enough. आपको जो बेसिक रॉ मटेरियल है आपको अपने क्लास नोट्स में या फिर किताबों में मिल जरूर जाएगा, लेकिन उसको आंसर फॉर्म में कैसे लिखना है और कैसे अपने आंसर को कंप्लीट करना है ये केवल प्रैक्टिस से आएगा. ओके, सो दीज 4 टॉपिक्स वी हैव कवर्ड टुडे. अब जो बाकी बचे हुए 2 टॉपिक्स हैं, दैट इज द मटेरियल कल्चर ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन एंड द religious life of the Harappan civilization, that we will do tomorrow. And after we have done those 2 remaining topics, फिर हम Vedic culture से शुरू करेंगे, the early and the later Vedic age. All right. So I'm going to end the class now until unless you have any doubts. कोई doubts हो तो आप हाथ उठा सकते हैं और you can write in the comment box. No doubts? चलिए then, thank you for your time. And कल से जो हमारे सेशंस होंगे, they are going to be closed sessions. तो जिन लोगों ने enroll किया हुआ है, only those will be able to attend this session. So if you haven't enrolled and you want to continue with these sessions, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ऑलरेडी दिए गए हैं. ठीक है. So thank you for your time. I'll see you guys tomorrow.